friends, it's Learning with Aisha. Today we are going to start the first chapter of our biology subject, that is the fundamental unit of life. I'm starting with your NCERT book. In NCERT book it is chapter number 5. Okay, so let's begin with the chapters. So this is your chapter number 5 in NCERT book, the fundamental unit of life. If you use the Lakshmi Singh name book, who is the writer of that book, so in that book, in biology section, it is the first chapter. Okay, I'm starting with the NCERT. I will provide you notes and with the full work plus some extra questions. Okay, so let's begin with the work. Now, I have a question that what do you mean by the fundamental unit of life? Fundamental unit क्या होता है? Fundamental unit हम बोलते हैं basic unit. With that, without which we can't live our life, that is cell. What it is? That is the cell. So, इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मैंने आपको बता दिया है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है. अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं. इंट्रोडक्शन में आपको दे देती हूँ. सो यहाँ पे हम सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उसकी डेफिनेशन, वो डिस्कवर किस तरीके से हुआ था, उसके पार्ट्स. अब जो सेल है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, लाइक द सेल वॉल, अनदर दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन, अनदर थिंग दैट इज द साइटोप्लाज्म, and the next is our nucleus. It is having many deep points inside it and it's a very important topic. So another topic we are having, that is the cell organaries. Here the cell organelles have many parts. It has been endoplasmic reticulum, short form ER, Golgi apparatus or Golgi complex. Here it is mitochondria, plastids, vacuoles and lysosomes. Here we are having the 6 parts in cell organelles. Okay, in these 6 parts also they are having many type of their parts. So another topic which we are going to cover, that is the cell division. How the cell division has been worked, how the cell divides. That will be in the form of 2. Number 1 is the mitosis, another is the meiosis. So these all the things we are going to study in the first chapter of the fundamental unit of life. That is the cell. Okay, let's begin with our work. Now I have talked many things about the cells. Now what do you know? What is a cell? The cell is a fundamental structure and functional unit of the living organisms, and thus it is the basic unit of life. As I have told you the meaning of the fundamental unit of life, that is the basic unit of the life. Fundamental means here the basic. Okay, the cells are the fundamental structure. It have a structure. A cell is covering. It's a functional. It performs various functions. It is a living organism. ये एक living organism है और इसको हम basic unit of life मानते हैं living organisms की. ये है आपकी डेफिनेशन सेल की. फर्स्ट टॉपिक हमने कवर कर लिया, सेल की डेफिनेशन. नेक्स्ट इज द डिस्कवरी ऑफ सेल. अब ये डिस्कवरी किस तरीके से हुई है सेल की. जो हमारे पास एक पर्सन आते हैं जिनका नेम है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने डिस्कवर किया था सेल को 1665 में. उन्होंने एग्जामाइन किया एक थिन लाइफ ऑफ कोर्क. कोर्क की अब ये कहाँ होता है कोर्क. कोर्क आप देखेंगे ट्री के ब्रांच में होता है. ट्री के ब्रांच के अंदर वाला पोर्शन, ट्रंक जिसे बोलते हैं आप, ट्रंक को बीच में से काट कर उसके अंदर होता है कोर्क. ओके, उन्होंने अपनी सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से देखा हो, यू कैन सी द प्रिमिटिव. ओके, माइक्रोस्कोप से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर है. हनीकॉम यानी कि जैसे मधुमक्खियों की छत्ते में आपने देखा होगा छोटे छोटे से रूम्स दिखाई देते हैं, राइट. उसे बोलते हैं हम हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स थे या फिर कोई छोटे छोटे से रूम्स थे, जिन्हें हमने बोला सेल्स. ओके, अब ये जो सेल वर्ड है ये डिराइव कहाँ से हुआ है, हमें मिला कहाँ से है. ये मिला है हमें एक लैटिन की लैंग्वेज वर्ड से जिसका नाम है सेलुला. ओके, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम्स. अब यहाँ पे जो सेल डिस्कवर किए गए थे रॉबर्ट हुक के द्वारा, वो सेल थे हमारे डेड सेल, मीन्स मरे हुए सेल थे, जिंदा सेल्स नहीं थे. अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो सेल उन्होंने डिस्कवर किए वो मरे हुए थे, मीन्स डेड थे. ये हम इसलिए कह सकते हैं बिकॉज उस सेल के अंदर जो सामान होता है, मीन्स सेल के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं,
जैसे मैंने आपको भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दिया था कि सेल के अंदर इतनी सारी चीज़ें होती हैं, राइट। सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, बाकी अलग अलग चीज़ें होती हैं। सो इसके अंदर वो सारी चीज़ें प्रेजेंट नहीं थी। द मेन थिंग, द कंट्रोल रूम, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस, विच यू आर गोइंग टू स्टडी डीपली in the next, okay, that is the nucleus that was not present in that type of the cell. That's why the cells were known as the dead cell, which were discovered by Robert Hooke. Maybe this type of the question arises that the cells which were discovered by Robert Hooke, why they were called as the dead cells. So its inside material was not present. That's why the cell which were discovered by Robert Hooke were called as a dead cell, not a living cell. Now there was a person named Anton von Leeuwenhoek who discovered in 1674 a first living cell. अब इन्होंने डिस्कवर्ड किया है एक फर्स्ट लिविंग सेल जो जिंदा सेल है। कितने साल बाद इन्होंने डिस्कवर्ड किया है? इन्होंने पूरे 9 साल बाद डिस्कवर किया, मीन्स 9 years आफ्टर रॉबर्ट हुक, Anton von Leeuwenhoek had discovered the first living cell under his improved microscope. Okay, another thing which we are going to study, that is the cell theory. Now we are going to start with the cell theory, how the cell theory has arrived. So there was a two person. In the first we are going to study about the M.J. Schleiden. Okay, Schleiden. He was a person named M.J. Schleiden. He was a German botanist who proposed, means told, that all the plants are consisted of the cells. जितने भी plants हैं उनके अंदर cells हैं। In 1838 ये बात किसने बोली थी? M.J. Schleiden ने। कौन से ईयर में बोली थी? 1838 में। अब उसके 1 year आफ्टर क्या हुआ? 1839 में थियोडर श्वान थे, वो भी एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, जिन्होंने असर्ट किया, उन्होंने बताया, माना कि जो इतने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सारे बने हुए हैं सेल्स से, सब बना हुआ है सेल से, प्लांट्स और एनिमल्स। दिस थिंग वाज टोल्ड बाय श्वान, थियोडर श्वान। ही वाज अ जर्मन zoologist. Okay, another thing that is in 1885, अब 1855 में क्या हुआ? Sorry, 1855. Rudolf Virchow. There was a person named Rudolf Virchow who modified the cell theory. Means he had added some points to the cell theory and stated that he has told them that and asserted that also omnis cellula a cellula, means omnis cellula a cellula. इसका मतलब क्या होता है कि जो जितने भी सेल्स हैं वो कहाँ से बन के आते हैं? पुराने सेल्स से. ओके, ऑल द सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. अब ये जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी है उसके अंदर बहुत सारी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, मीन्स कुछ पॉइंट्स हैं. नंबर फर्स्ट पॉइंट इज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ द सेल्स एंड द सेल प्रोडक्ट्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हुए हैं और सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं. जो सेल्स हैं वो एक स्ट्रक्चर है, एक फंक्शनल यूनिट है लाइफ का. अब जो न्यू सेल होते हैं वो कहाँ से बनते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से. अब इन्हीं चीज़ों के ऊपर यहाँ पे जो सेल्स हैं और उनके ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिवाइडेड किए गए हैं 2 कैटेगरीज में. फर्स्ट इज द यूनिसेलुलर, अनदर इज द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स, अब जो सेल्स भी हैं वो 2 तरीके के ऑर्गेनिजम्स में बात कर रहे हैं हम. तो जो सेल हैं, अब एक जगह पे बहुत सारे सेल हैं, दूसरी जगह पे थोड़ा थोड़ा एक ही सेल सारे काम कर रहा है, राइट. तो इसी बेस के ऊपर हमारे पास 2 तरीके के सेल आ जाते हैं. नंबर 1 इज द यूनिसेलुलर, अनदर दैट इज द मल्टीसेलुलर. अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक ही सेल से बने होते हैं उन्हें बोलते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. और ऐसे सेल्स जो एक या उससे ज़्यादा लार्ज नंबर कंसिस्ट करते हैं उस सेल्स के, उन्हें बोलते हैं हम मल्टी सेलुलर सेल्स. और दी ऑर्गेनिजम्स, ऑल एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय सेम सेल. अब जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक ही सेल परफॉर्म करता है. बट हम बात करें अगर मल्टी सेलुलर में, तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरीज हैं. मीन्स एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ. अब तो एक ग्रुप है, एक ग्रुप काम कर रहा है अच्छे से और एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन काम कर रहा है, राइट. कुछ भी स्पेसिफाइड वर्क दे दिया गया है तो पहला बेटर वर्क कौन करेगा? दैट वन ग्रुप, राइट, इन विच द मोर पीपल्स आर देयर, मोर पर्सन्स आर देयर, सो दैट विल परफॉर्म अ ग्रेट वर्क एंड अ गुड वर्क इन स्पेसिफाइड टाइम. इन
little amount of time, right? But the individual which is there, which is only one person that will perform that work in some limited time, that will also perform the work, right? It will perform the work, but it will take lot of time, means some time. It will take the more time, but the work which is performed by that group will take less time. ओके, सो देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ द लेबर. यहाँ पे डिवीजन होता है मल्टी सेलुलर में, बट यूनिसेलुलर में यहाँ पे डिवीजन नहीं होता है लेबर का. यहाँ पे जो यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं ये जल्दी मर जाते हैं, मीन्स लाइफ स्पैन होती है इनकी छोटी, शॉर्ट होती है ऑर्गेनिजम्स की. ऐसे इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है बैक्टीरिया का, अमोएबा का, पैरामीशियम का. ये इस तरीके की बैक्टीरियाज हैं. ओके, इसमें बात करें हम मल्टी सेलुलर सेल्स के बारे में, इनकी लाइफ स्पैन ज़्यादा होती है, लॉन्ग होती है, और यहाँ पे डिवीजन भी होता है लेबर्स का सेल में. इसमें आ जाते हैं हमारे प्लांट्स, एनिमल्स और जितने भी ह्यूमन बींग्स. अब नेक्स्ट टॉपिक हम जो कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ द बेस ऑन द नंबर ऑफ द सेल्स. अब हमने जितने टाइप के सेल्स के बारे में पढ़ा, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, ये दो तरीके के क्या हो गए, ऑर्गेनिजम्स हो गए, राइट. अब यहाँ पे उन्हीं के ऊपर बेस हम दो तरीके के सेल्स पढ़ने जा रहे हैं दैट इज नोन एज द प्रोकैरियोटिक और द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जो डिवाइड किए गए हैं दो तरीकों में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, लेट्स सी दैट. Prokaryotic. Okay, first we are starting with prokaryotic. I will take one point of prokaryotic, then another point of eukaryotic. Let's start. The organisms which are made up of eukaryotic cells are called prokaryotic cells are called prokaryotic organisms. यहाँ पे हमें इन्हें organisms बोलना है, मीन्स ये दो तरीके के organisms हैं, ये सेल नहीं organisms हैं. अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्रोकैरियोटिक सेल्स से बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स से बनते हैं वो होते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. जो यूकैरियोटिक सेल्स से बने होते हैं उन्हें बोलते हैं हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन देम. अनदर इज द साइज इज जनरली सेम. उनका साइज सेम रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है. ओके, ना ज़्यादा बड़ा होता है ना ज़्यादा छोटा होता है, सेम रहता है. ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें यूकैरियोटिक की तो इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, मीन्स जनरली इनका साइज़ लार्ज होता है, बड़ा होता है. यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं यहाँ पे. ठीक है, अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं ये आप आगे जाके पढ़ेंगे. इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं. ओके, यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. यहाँ पे अच्छा खासा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसमें हमारे पास आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स. ER लिखा हुआ है, इट मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, एक्सेट्रा चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं. अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक की तो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द सेल डिवीजन टेक प्लेस. अब यहाँ पे सेल डिवीजन भी होता है, वो लेता है प्लेस बाइनरी फ्यूजन या फिर बॉन्डिंग से. लेकिन अगर हम बात करें सेल डिवीजन की यूकैरियोटिक में तो यहाँ पे वो होता है माइटोसिस और मियोसिस के ज़रिए. ठीक है, इसमें ज़्यादातर आ जाते हैं हमारे पास बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गिया, मीन्स ये यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं ज़्यादातर टाइम्स तो. बट यहाँ पर जो अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यहाँ पे सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं बैक्टीरिया को छोड़कर, मीन्स ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स एक्सेट्रा. ओके, ऑल द थिंग्स एक्सेप्ट बैक्टीरिया. I have given you this small structure of the cell, that is, this is the outer membrane. This one membrane is known as a cell membrane or the plasma membrane, and this outer one lining boxing like this structure is known as cell wall. It gives a definite shape to the cell. Okay, inside it many things are present like cytoplasm. These things you can see is this type of bounded here, this. Okay, this is known as a cytoplasm. Here this is known as the chromosomes. These things are present, some of these things are present inside the nucleus, and outside the nucleus we are having some type of these things. Okay, these are having the ribosomes. I will tell you in details also about them. This is a small structure. Okay, you can make a diagram also in your notebook. Let's come on to the structure of the cell. What is the structure of the cell? Let us study that. The cell is having the three major functional regions.
Number one is the cell envelopes, another is the cell membrane, and the third is the cell wall. अब सेल एनवेलप, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और न्यूक्लियस आ जाता है, फिर आ जाता है हमारे पास साइटोप्लाज्म। लेट्स स्टडी देम इन डिटेल्स। Number first, we are going to study that is the cell membrane or the plasma membrane. They are the two names of the cell membrane or the plasma membrane. This one lining, I have told you this is known as, not that this one, okay? ये outermost layer नहीं. The second outermost layer is known as the plasma membrane or the cell membrane. Let's study about this. It is a living, ये जिंदा है, thin है, delicate है, means पतली है, ओके। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं क्योंकि ये कुछ ही सब्सटेंसेस को अंदर आने देता है सेल के, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे एक चीज़ बढ़ रही है इसके आगे, ओके। अब ये जाते रही है लेकिन ये एंटर नहीं करने दे रहा है बिकॉज ये हार्मफुल सब्सटेंस है। सो इसलिए सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये यूजफुल सब्सटेंसेस को ही अंदर जाने देती है और अगर कोई अंदर हार्मफुल सब्सटेंस है तो उसको बाहर निकाल देती है, ओके। इसकी परमिशन के बिना हम अंदर नहीं जा सकते और बाहर नहीं जा सकते। Another thing, it is a outer covering of each cell. हर सेल की आउटर कवरिंग होती है ये, ठीक है। और भाई ये डेलिकेटेड होती है, थिन होती है और लिविंग होती है। Another thing that is the structure of the plasma की बात करते हैं राइबोसोम्स की। तो राइबोसोम्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिंथेसाइज करने में प्रोटीन्स पाने में, प्रोवाइड कराने में, ठीक है। ये प्रोटीन फैक्ट्री भी बोले जाते हैं सेल्स की। 70S कैसे बनते हैं? 50S + 30S। 80S कैसे बनते हैं? 60S + 40S। रीज़न मैंने बता दिया है कि अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो 80S बनता है, यहाँ पे 100S बनता है। बट ये जो 100S यहाँ पे हमारा बन रहा है, इसमें से 20S हम एक्स्ट्रा रखते हैं अगर कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, उसमें हम यूज़ करते हैं उसको। नेक्स्ट टॉपिक इज आर गोल्गी अपैरेटस और द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये ऐसा नाम इन्हें ऐसा दिया गया है क्योंकि ये डिस्कवर्ड किए गए थे चैमिलो गोल्गी के द्वारा, ठीक है। ये कंसिस्ट करते हैं सिस्टम मेम्ब्रेन बाउंड का, फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स का, और अरेंज करते हैं एक दूसरे के इक्वल स्टेक्स में, जिसे हम बोलते हैं सिस्टर्नी, ठीक है। ये आपको मैं आपको पूरा डायग्राम दिखाऊंगी, उससे और भी क्लियर हो जाएगा। ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं न्यूक्लियस में, सेल के अंदर। ये फाउंड किए जाते हैं रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऑरिजिनेट्स में, यानी कि उनके साइड्स वगैरह में। अब हम बात करते हैं प्लांट सेल्स के बारे में। प्लांट सेल्स में ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सब यूनिट्स। सब यूनिट्स इक्वल्स होते हैं यूनिट्स के, गोल्गी बॉडी का अपैरेटस और कॉम्प्लेक्स के, जो प्रेजेंट होते हैं डाइक्टोसोम्स। अब डाइक्टियोसोम्स क्या होते हैं? जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें बहुत सारी फ्रीली ऐसी ही गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स घूमते रहते हैं जो प्रेजेंट होती हैं उसमें, उसे हम डाइक्टियोसोम्स बोलते हैं। क्लियर दिस पॉइंट? अब नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ते हैं, दैट इज द फंक्शंस। इट्स फंक्शंस आर दी दे मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी अपैरेटस इज सिक्रेशन। सिक्रेशन में काम आता है, ये इसे पैकेजेस मटेरियल, ये पैक करता है मटेरियल को और उसको डिस्पैच कर देता है, ठीक है, अंदर या बाहर। जैसे कि अब यहाँ पे बेकार सामान है, इसे बाहर फेंका, बाहर कुछ अच्छा सामान है उसे अंदर ले आया, ठीक है। ये प्रोड्यूस करता है एक्यूल्स और स्केलेटरी वेसिकल्स। अलग अलग तरीके की वेसिकल्स ही प्रोड्यूस करता है, स्केलेटरी और एक्यूल्स। इट इज़ ऑल्सो इनडिवाइडेड, ये डिवाइडेड नहीं, ये इनडिवाइडेड है सिंथेसाइज करने में सेल वॉल की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और लाइसोसोम्स। ये स्ट्रक्चर है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल गोल्गी बॉडी। ये एकदम सिंपल है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे बोलते हैं हम ट्यूबिकल्स। व्हाट डू वी कॉल इज ट्यूबिकल्स। इनको हम जो गोल गोल डॉट ऐसे बॉल की तरह बना हुआ है इससे हम बोलते हैं वेसिकल्स। और ये जो बीच में इस तरीके का स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं हम सिस्टर्नी। क्लियर? इतना इजी है, इसका डायग्राम आराम से बना लेंगे आप और क्लियर भी हो गया होगा आपको कि वेसिकल्स ट्यूबिकल्स में हम बात कर रही थी ये कहाँ है और कैसा दिखता है। सो इट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ आर लाइसोसोम्स। इनको हम, ये बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, टाइनी होते हैं,
स्प्रेड साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है इनका, जो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। ये सराउंडेड किए जाते हैं एक ही मेम्ब्रेन से, और इनके अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल एंजाइम होता है जो बना होता है RER से। एक बहुत पावरफुल एंजाइम, एक तरीके का एंजाइम बना जाता है, लिक्विड टाइप कुछ होता है, ठीक है, एनर्जी की उसमें यूज़ किया जाता है वो। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, ये डिस्ट्रॉय या फिर डाइजेस्ट कर सकता है किसी भी फॉरेन मटेरियल को जो प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन सेल में, ठीक है। हेंस इनको हम डाइजेस्टिव या फिर डिस्ट्रॉय बैग्स भी बोलते हैं सेल्स का। ये रिमूव करता है सेल डेब्रिस उसे डाइजेस्ट करने के बाद, ठीक है। इनको हम स्क्वेंजर्स या फिर गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम भी बोलते हैं सेल का। ये इनको हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, यानी कि सुसाइड कर लेते हैं ये खुद ही। ऐसे कैसे सुसाइड कर लेंगे? ये इनके एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एंजाइम्स छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो खुद ही का मटेरियल खा जाते हैं, खुद ही का सेल खा जाते हैं अगर सेल हल्का सा डैमेज हो जाता है तो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। ये टाइनी बॉडीज़ होती हैं वेरियस शेप्स और साइजेस की, जो डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है जिसमें साइटोप्लाज्म में। ये डबल मेम्ब्रेनस है, आउटर मेम्ब्रेन थोड़ी सी पोरस होती है और जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर इन्फ्लेडिंग्स होती हैं जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टे। ओके, क्रिस्टे। जो इंटीरियर कैविटी होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो फिल होती है मैट्रिक्स से, जो वो कंटेन करता है थोड़े थोड़े से राइबोसोम्स एंड अ स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA और डबल स्टैंडर्ड DNA, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम फंक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया की। ये साइट्स होती हैं ऑक्सीडेशन यानी कि रेस्पिरेशन क्या साइट्स होती हैं ये रिलीज़ करती है एनर्जी ATP के फॉर्म में, इसलिए इसे हम पावर हाउस भी बोलते हैं सेल का। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं वो खुद के आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर प्रोटीन्स एंड कंटेन्स। इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और ख़ुद का जेनेटिक मटेरियल कंटेन करती हैं ये, इसलिए ये रिगार्डेड है सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनल्स में से, ठीक है, जिनके पास खुद का मटेरियल होता है और खुद के प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज़ दी प्लास्टिड्स। जो प्लास्टिड्स होते हैं वो प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं। एंड माइटोकॉन्ड्रिया की तरह माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको प्लांट सेल्स में मिलेंगे, एनिमल सेल्स में नहीं मिलेंगे। क्लियर दिस पॉइंट टू यू ऑल? अब जो ये होते हैं प्लास्टिड्स, ये अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल और राइबोसोम्स होते हैं इनके पास, इसलिए इन्हें भी हम सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनल्स बोलते हैं। जो प्लास्टिड्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, लेट्स स्टडी देम ऑल्सो। नंबर 1 इज़ दी क्लोरोप्लास्ट। ये ग्रीन कलर का प्लास्टिड्स होता है। क्रोमोप्लास्ट, ये कलर्ड प्लास्टिड होता है लेकिन ग्रीन को छोड़कर। लीकोप्लास्ट, ये कलरलेस प्लास्टिड होता है, यानी कि ऐसे कैसे याद रखेंगे मैम, ये ग्रीन है, ये वाइट है, ये पता नहीं कैसे कैसे कलर है, ठीक है। तो इसमें सिंपल है लीको, L मतलब कुछ कलर नहीं होता उसमें। क्रोमो का मतलब होता है, क्रोमो से आप याद रखिएगा कि इसमें कुछ कलर है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट की बात करें हमें तो इसमें सिर्फ ग्रीन कलर ही होता है, ठीक है। ये डिफरेंस है इन तीनों के बीच। अगर हम बात करें लीकोप्लास्ट की तो ये काम आता है स्टोर करने में फूड को। अब ये जितना खाना स्टोर करता है तो उसके अकॉर्डिंग ये डिवाइड भी किया जाता है कि जो कुछ कार्बोनेट स्टोर करता हो, कुछ प्रोटीन स्टोर करता हो, कुछ फैट्स, ठीक है। तो ये 3 तरीके के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, एलियोरोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट। जो एमाइलोप्लास्ट होता है वो स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट, और एलियोरोप्लास्ट जो होता है वो स्टोर करता है प्रोटीन्स, एलायोप्लास्ट जो होता है वो स्टोर करता है फैट्स को। क्लियर दिस पॉइंट टू यू? लीकोप्लास्ट किस काम आता है? स्टोर करने में फूड्स को। और ये कैसा होता है? ये कोई कलर नहीं होता इसमें, ठीक है। अनदर विच वी आर गोइंग टू कवर दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। ये प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, इनके अंदर ग्रीन कलर होता है। अब ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है इसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। पढ़ा था हमने कि ये बस ग्रीन ही कलर के होते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोरोप्लास्ट टैप करने में सनलाइट को। फोटोसिंथेसिस जब ये परफॉर्म करते हैं प्लांट्स तो उसमें ये सनलाइट टैप करता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको किचन भी बोलते हैं सेल का, जहाँ खाना पकता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डिस्कवर्ड किया गया है A.J.W. शेम्पर्ट से, ठीक है।
1883 में। इसका जो साइज़ है और डिस्ट्रीब्यूशन है क्लोरोप्लास्ट की वो अलग अलग है सेल्स में उनकी स्पेशीज़ के अकॉर्डिंग। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें प्लास्टिड्स के, ये 3D डायग्राम भी दे रखा है मैंने आपको यहाँ पर। जो क्लोरोप्लास्ट है वो इन्वॉल्व हुआ है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड को मैन्युफैक्चर करने में। क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पैरेटिंग, ये रिस्पॉन्सिबल है अलग अलग कलर्स प्रोवाइड करने में प्लांट्स को, ताकि वो अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए। ये देखिए आउटर मेम्ब्रेन होती है ये, ठीक है। यहाँ पे स्टोरमा क्लोरोप्लास्ट, ये तरीके की जो स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है इसे हम स्टोरमा बोलते हैं। ये इनर मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पे हमारा ग्रेनम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे लूमेन होता है हमारा, ये होता है हमारा थाइलेकोइड्स। ओके, नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज द वैक्यूल्स। ये फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, स्टोरेज करते हैं सैक्स प्लांट सेल्स में। इनमें लार्ज सैक्स होते हैं प्लांट सेल्स में, ये लार्ज होते हैं और परमानेंट होती हैं वैक्यूल्स जो प्रेजेंट होती हैं प्लांट सेल्स में, ठीक है। अब जो मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल्स की उसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। जो वैक्यूल है वो पूरा भरा हुआ है सेल सैप से। अब अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, ये हेल्प करता है हमारा मेंटेन करने में ऑस्मोटिक प्रेशर। आपने तो सुना होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, तो ये वही मेंटेन करने में हेल्प करता है हमारे सेल के अंदर। ये स्टोर करता है टॉक्सिक मटेरियल, इनकी हाइजीनिक मटेरियल प्रोडक्ट्स जो होते हैं सेल्स के अंदर। ये प्रोवाइड करता है टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्लांट सेल्स को। ये एनिमल सेल्स में टाइनी होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं वैक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है सेंट्रोसोम्स। ये प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल्स में लेकिन एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल्स में। ये कंटेन करता है दो तरीके की माइटोकॉन्ड्रियल बॉडीज़ जिसे हम बोलते हैं सेंट्रियोल्स। ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है। ये हेल्प करता है हमारा सेल डिवीजन में, और प्लांट सेल्स में इसके अंदर परफॉर्म होती हैं पोलर कैप्स, परफॉर्म किए जाती हैं फंक्शंस सेंट्रियोल्स की। ओके, डिफ्रेंशिएट देख लेते हैं हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में। इसे पढ़ने के लिए हमारे पास एक छोटा सा डायग्राम भी है, उसे देख लेते हैं हम ज़रा। अब देखिए ये हमारा बना हुआ है डायग्राम। यहाँ पे जो प्लांट सेल होता है यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, प्लास्टिड्स होते हैं, इसमें परमानेंट और बड़े बड़े साइज़ के वैक्यूल्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर। सेंट्रोसोम्स यहाँ पे नहीं होता है लेकिन पोलर कैप्स होती हैं प्लांट सेल्स में, ठीक है। और इनकी एक डेफिनाइट शेप होती है जो रिप्रेजेंट की जाती है सेल वॉल के ज़रिए, ठीक है। ये हमारी सेल वॉल आ गई, ये वाली, ये सारी हमारी सेल वॉल आ गई। ये हमारा न्यूक्लियस आ गया बीच में, न्यूक्लियस भी होता है इनमें, स्मूथ न्यूक्लियस सब कुछ प्रेजेंट होता है इसमें। ओके, नेक्स्ट चीज़ हम देखने जा रहे हैं प्लांट सेल्स के बारे में। अब जो प्लांट सेल्स होती हैं इनके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होती क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल ही नहीं होती है, इसलिए ये साइज़ में छोटा होता है और जो प्लांट सेल होता है वो बड़ा होता है साइज़ में। जो सेल वॉल होती है वो होती ही नहीं है, प्लास्टिड्स वो भी नहीं होता इसमें। इसके अंदर छोटे छोटे से टेम्पररी वैक्यूल्स होते हैं। जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है इसके अंदर, और सेंट्रोसोम्स होते हैं इसके अंदर। अगर हम बात करें सेंट्रोसोम्स की, सो यहाँ पे हमारा सेंट्रोसोम्स दिखाया नहीं गया है शायद, ये यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, बट यहाँ सेंट्रोसोम्स इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर टाइप प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर डेफिनाइट शेप नहीं होती है, प्लांट सेल्स में होती है। ये डिफरेंस था इन दोनों के बीच में। अब हम लोग जो लास्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे नए सेल बनते हैं, उसे हम सेल डिवीजन बोलते हैं। ये दो तरीके के होता है, माइटोसिस और मियोसिस में। क्लियर दिस पॉइंट? बात करें हम माइटोसिस की, सो इसमें ये जो सेल होता है मदर सेल, एक मिनट मैं आपको इसको एक छोटे से डायग्राम से समझा देती हूँ, वो आपको ज़्यादा क्लियरली रहेगा। डेफिनेशन देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही मैं आपको समझाने जा रही हूँ। ओके, सो लेट्स सी दैट। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक्स टाइप के इस तरीके से क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं।
यहाँ पर हमारे पास हैं, मैं 4 क्रोमोसोम्स बना रही हूँ। क्लियर दिस पॉइंट यू? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? यहाँ पर हमारे पास 4 क्रोमोसोम्स हैं। अब ये क्रोमोसोम्स जब कन्वर्ट किए जाएंगे, मीन्स दिस इज द मदर सेल। ठीक है, ये मदर सेल है। अब ये मदर सेल में इतने क्रोमोसोम्स हैं। अब ये क्रोमोसोम्स से डिवाइड कर रहे हैं डॉटर सेल्स में। किन में कन्वर्ट हो रहे हैं? डॉटर सेल्स में। अब जब ये डॉटर सेल्स में कन्वर्ट किए जा रहे हैं, यहाँ पर हम इनके स्ट्रक्चर के ऊपर बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये हमारे कितने हैं? यहाँ पे कितने थे? एग्ज्यूम कर लीजिए 4n यहाँ पर है, और यहाँ पे कितने हैं? 4n है, और यहाँ पे भी 4n है। जब सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज इन द मदर सेल्स डिवाइड फर्दर टू फॉर्म the same equational number of the chromosomes in the daughter cells, that are known as this process is known as the mitosis. इसे बोलते हैं माइटोसिस, जहाँ पर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जैसे मदर सेल्स के अंदर जितने क्रोमोसोम्स हैं उतने ही डॉटर सेल्स में होते हैं। इसे हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। यहाँ पर जो ईच सेल होता है मदर सेल, इसे कॉल किया जाता है मदर सेल्स। ठीक है, वो डिवाइड किया जाता है इक्वेशनल डॉटर सेल्स में, जिसके अंदर सेम नंबर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के जितने मदर सेल्स में होते हैं, उसे बोलते हैं हम माइटोसिस। क्लियर दिस पॉइंट? अनदर विच वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज द मेयोसिस। सो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं मेयोसिस। अब मेयोसिस कैसे टेक प्लेस करता है? दिस इज नोन एज आई हैव टोल्ड यू, दिस इज द मदर सेल। ये कितने एक्स ले रखा है इसने? इसके अंदर है 4n। एज्यूम दीज आर हैविंग द 4n क्रोमोसोम्स, राइट? द मदर सेल इज हैविंग, एंड व्हेन दे डिवाइड, these two division take place. In meiosis, 2 division take place. First is the meiosis 1, another is the meiosis 2. Okay, 2 division take place in this type of the division. So यहाँ पे जब ये मदर सेल्स डिवाइड हो रहे हैं मियोसिस फर्स्ट में, ये क्या है हमारा? मियोसिस फर्स्ट डिवीजन हो गया, मियोसिस का फर्स्ट डिवीजन। यहाँ पर हमारे ये डिक्रीज हो रहे हैं, यहाँ 4 थे, यहाँ 2n है। डॉटर cells are having the two chromosomes, right? So here it is not an equational division, it is the consecutive division. यहाँ पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं डॉटर सेल्स में, राइट? सो इट इज़ अ डिक्रीजमेंट इन द क्रोमोसोम्स। ये मियोसिस फर्स्ट में डिक्रीजमेंट हो रहा है, और मियोसिस सेकेंड की अगर हम बात करें, सो यहाँ पर इक्वल नंबर है, मीन्स यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है। अब यहाँ पर क्या होता है मियोसिस सेकेंड में ये क्रोमोसोम्स है हमारा, राइट? अब ये हाफ कुछ चीज़ें ले लेता है, कुछ मटेरियल ले लेता है क्रोमोसोम्स का, राइट? यहाँ पर इतना मटेरियल था क्रोमोसोम्स में, इसके आप स्ट्रक्चर पे मत जाइएगा, ठीक है? यहाँ पे क्रोमोसोम्स में इतना ऐसा ब्लैक टाइप मटेरियल था, और यहाँ पर कुछ खुला हुआ है, यहाँ पे पूरा वाइट है, और कुछ मटेरियल इसका ले लिया है इसने। सो इस तरीके के डिवीजन को जो 2 तरीके में होता है, इन द फर्स्ट डिवीजन देयर इज़ द डिक्रीजमेंट इन द सेल डिवीजन, and in the second there is the equational division that are known as the meiosis. Clear this point to you all? ठीक है? ये जो परफॉर्म करता है ये सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में होएगा। ये हेल्प करता है हमारा मेंटेन करने में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है? अगर हम बात करें, यहाँ पर तो 4 थे, यहाँ डिक्रीजमेंट हुई, बट यहाँ पे तो सेम नंबर्स हैं क्रोमोसोम्स के। क्लियर दिस पॉइंट? ये रिस्पॉन्सिबल है वेरियस सेक्सुअल वेरिएशंस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। इफ यू वांट टू टेक द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम, Clear to you all? Thank you so much for watching my video, and please subscribe my channel if you understand something by me, and if you understand this point, any doubt you are having, so you can tell me in the comment section. Thank you everyone. Thank you.
कंट्रोल करता है सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ सेल्स की, यानी कि जो भी एक्टिविटीज़ सेल्स परफॉर्म करने जा रहे हैं वो सारी कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ये रेगुलेट्स करती है सेल साइकिल को, यानी कि सेल साइकिल पूरी रेगुलेट्स करती है, यानी कि चलाती है। ये रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग यहाँ पे बोला गया है चिल्ड्रंस को या फिर उनके चिल्ड्रंस को। ओके, सो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो एक्टिविटीज़ हैं पेरेंट्स में वो उनके ऑफस्प्रिंग्स में भी ट्रांसपोर्ट करता है। अगर हम स्ट्रक्चर बात करें न्यूक्लियस की, सो ये कुछ इस तरीके से होता है। अगर आप देखें ये इनसाइड का ये जो मटेरियल है बीच में प्रेजेंट, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोलस। अब ये न्यूक्लियोलस होता है। अगर हम बात करें ये बीच में छोटा छोटा सा लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर, ये होता है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। ये होता है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। ये एनवेलप्स हैं, ये सारे जो इसको कंप्लीट बना रहे हैं, एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं, वो है हमारे सेल न्यूक्लियर एनवेलप, जिनकी साइड में छोटी छोटी सी जगह छुटी हुई हैं, जिनको बोलते हैं हम न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, इनके ऊपर छोटे छोटे से एक स्ट्रक्चर बना होता है, एक पिंपल टाइप स्ट्रक्चर बना होता है, जिसको बोलते हैं हम राइबोसोम्स। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। यू कैन सी, आई हैव नॉट मेड इट करेक्टली बट यू कैन सी दिस। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये फ्लूइड कंटेंट होता है सेल के अंदर जो प्रेजेंट करता है बिटवीन न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है साइटोप्लाज्म। ये कंसिस्ट करता है एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस यानी कि लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंसेस, जिनको हम बोलते हैं साइटोसोल। ओके, जो कंटेन करते हैं बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स और अदर इंक्लूजन बॉडीज़ और उनके अंदर की ज़्यादातर बॉडीज़। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेल ऑर्गेनरीज के ऊपर। ओके, फर्स्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक मेम्ब्रेन नेटवर्क है जो इंक्लूज करता है फ्लूइड फिल्ड लूमेन को एक एंड से दूसरे एंड तक, जो कनेक्टेड होता है जो न्यूक्लियस का और अदर एंड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक कनेक्टेड होता है न्यूक्लियस से, दूसरा जो एंड कनेक्ट होता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इस तरीके से होता है। सी क्लियरली, ये इस तरीके के न्यूक्लियर पोर्स लेता है, इसको हम न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। ये ऐसा स्ट्रक्चर, इनके बीच में जो गैप है वो होते हैं हमारे न्यूक्लियर पोर्स। इनके ऊपर छोटे छोटे से राइबोसोम्स होते हैं। ये भी दो तरीके के होते हैं, रफ एंड स्मूथ। अब रफ इस साइड प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ इस साइड प्रेजेंट होते हैं। ओके, अपोजिट डायरेक्शन में रफ होता है और उसके साइड में अपोजिट होता है स्मूथ। अब जो रफ होता है उनके ऊपर छोटे छोटे से इस तरीके के पिंपल्स टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। ये होते हैं हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी साइड में होते हैं हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये स्ट्रक्चर है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो मैंने आपको जैसे बताया ये दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर जो अगर हम रफ की बात करें तो यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं वो आउटर सरफेस के ऊपर, लेकिन यहाँ पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं। ये स्पेशलाइज करता है दो तरीके के सिंथेसाइज में प्रोटीन्स के। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये स्पेशलाइज्ड है टू सिंथेसाइजेस लिपिड एंड स्टेरॉइड। ये दो तरीके के सिंथेसाइजेस में इस्तेमाल होता है। इसके फंक्शंस की बात करें हम, ये फॉर्म्स करता है स्केलेटन फ्रेमवर्क सेल का। ये प्रोवाइड करता है पाथवे, डिस्ट्रीब्यूशन करता है न्यूक्लियर की सारे मटेरियल की और उनके वन सेल टू अदर, एक सेल से दूसरे सेल की सारी जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये हमारी हेल्प करता है डिटोरिफिकेशन लीवर की, यानी कि डिटोरिफिकेशन करता है लीवर की, है साफ करता है लीवर को। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोसिंथेसिस में मॉलिक्यूल्स की, फॉस्फोलिपिड्स की, कोलेस्ट्रॉल की। ओके, बायोसिंथेसिस बोलते हैं यहाँ पर
बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की, मॉलिक्यूल्स की, या फिर हम कह सकते हैं फॉस्फोलिपिड्स की या फिर कोलेस्ट्रॉल की। अगर हम बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये प्रोड्यूस करता है एंजाइम लाइसोसोम्स में और ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन्स। ये लाइसोसोम्स में एक तरीके का एंजाइम प्रोड्यूस करता है और ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन्स। इसमें इंक्लूड्स करता है फॉर्मेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिसे हम बोलते हैं एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, यानी कि मेम्ब्रेन किस तरीके से बनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके लिए हमें पहले RER चाहिए, उससे बनता है SER, फिर बनती है गोल्गी apparatus और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, फिर बनता है सेक्रेटरी वेसिकल्स, फिर आता है हमारा फाइनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं जिनसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है। अनदर दैट टॉपिक इज राइबोसोम्स, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेंस होती हैं, स्पेरिकल और नॉन मेम्ब्रेन होती हैं, इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है इनके पास। ये फ्रीली घूमती रहती हैं साइटोप्लाज्म में और अटैच रहती हैं एंडोप्लाज्म सर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये केमिकली कंसिस्ट होती हैं RNA और प्रोटीन्स से। ये प्रेजेंट होती हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में, ठीक है। दो तरीके के राइबोसोम्स होते हैं, पहले होते हैं 70S, दूसरे होते हैं 80S। हम बात करें तो ये 70S बने होते हैं 50S प्लस 30S, लेकिन आप कहोगे अगर 50S और 30S को हम प्लस करें तो हमारे पास 80S आ जाता है, बट यहाँ पर 70S ही यूज़ होते हैं। जो 10S होते हैं वो बाद में अगर कोई इम्पेयर हो जाए, मीन्स थोड़ा सा रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं वो, ओके, सेल्स की। सेम हेयर 80S का 60S प्लस 40S दैट इज 100S बैठता है, बट यहाँ पे 20S हम रखते हैं, अगर कुछ डैमेज वगैरह हो जाता है तो उसको रिपेयर के लिए काम आती हैं ये 20S, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा यूकैरियोटिक सेल्स। अब जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो कंटेन करती हैं 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स, और अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की, वो कंटेन करते हैं 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब स्ट्रक्चर कैसा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? ये बना होता है लेयर्स, फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और पॉलीसेकेराइड से, ओके। ये तरीके के कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। फॉस्फोलिपिड्स का प्रोटीन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, आप सबने पढ़ा भी होगा अपनी जूनियर क्लासेस में। पॉलीसेकेराइड भी होता है, ओके। अब यहाँ पे हम जानेंगे फ्लूइड मेसेक मॉडल। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। सो यहाँ पे हमें बताया गया है कि 1972 में एक सिंगर और निकोलसन थे जिन्होंने एक मॉडल दिया, एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल दिया था उन्होंने, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उन्होंने समझाया है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। उसके अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो बना होता है दो तरीके की फॉस्फोलिपिड्स और दो तरीके की प्रोटीन से, दैट इज द एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक, ओके। Two types of proteins are there. Here first is extrinsic protein are those which remain on the periphery or the topmost surface, on the topmost or the upper surface of the lipid membrane. Another thing is that is the intrinsic proteins which remain embedded in the lipid membrane. जो remain रहती है embedded रहती है, means बीच में रहती है lipid membrane के। अब हम जानेंगे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है फॉस्फोलिपिड्स का, ओके। मैंने आपको बताया था फॉस्फोलिपिड्स प्रोटीन होती है, एक्सट्रिंसिक होती है और एक होती है पॉलीसेकेराइड, ओके। जस्ट सी दिस इज अ स्ट्रक्चर, इट इज हैविंग, दिस इज नोन एज द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, okay, and these type of proteins which remain embedded in the lipid membrane, they are known as the extrinsic proteins, okay, and this full structure is known as the phospholipid. Clear this point to you all? Let's study about the function of the plasma membrane. What are the function of the plasma membrane? So as a plasma membrane is a selectively permeable membrane, it allows only movement of the substances in and out of the cell through diffusion और osmosis या diffusion के ज़रिए ही ये in and out करती है substances की movement, ओके। ये दो तरीके की movements हैं जिनसे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होती है। फर्स्ट इज द डिफ्यूजन, अनदर इज द ऑस्मोसिस, ओके, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल्स, ओके। सर्टेन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, इन तरीके की एक्टिविटीज़ जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस भी इससे परफॉर्म किए जाते हैं। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट डिफ्यूजन इन डिटेल्स।
ये एक मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का. मॉलिक्यूल्स बोलते हैं स्मॉलेस्ट वेरी वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन ऑब्जेक्ट सब्सटेंस. ओके, इट इज द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ द हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन until the uniform concentration is finally achieved. यानी कि एक मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन, जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन हो, और एक बीकर ले लीजिए आप, उसके अंदर एक साइड में है हायर कंसंट्रेशन, ज़्यादा पानी है, और दूसरी साइड में कम पानी है. तो क्या होगा, वो जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन वाला पानी है वो मूवमेंट स्टार्ट कर देगा लोअर कंसंट्रेशन की. ओके, जब तक जो बिल्कुल इक्वल नहीं हो जाता, यूनिफॉर्म बोलते हैं इक्वल कंसंट्रेशन नहीं हो जाता जब तक अचीव नहीं किया जाता उसे. ओके, ये जैसे कि सब्सटेंसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लें हम, वाटर ले लें, ऑक्सीजन ले लें, ठीक है, कोई भी ले लें, ऑक्सीजन ले लें, वाटर ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड ले लें आप, कोई भी तरह की गैस, वाटर, किसी भी फॉर्म में हम ले सकते हैं. वो मूव करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए, इस प्रोसेस से. ओके, अनदर थिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर इज ऑस्मोसिस. ये मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का. यहाँ पे सिर्फ हमें बात करनी है वाटर की. ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर आता है. डिफ्यूजन में हमने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड भी, ऑक्सीजन भी, वाटर भी, ये मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. लेकिन यहाँ पे सिर्फ कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स. इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द ओनली द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स from the region of the high water concentration towards the region of the lower water concentration. Okay, it is also a type of the movement in which the water is moving from the high concentration towards the lower concentration, but only the water is moving, not any other thing is moving like carbon dioxide or you can say oxygen. No, only the water movement is performed over here. Certain type of these differences are there between the osmosis and the diffusion. Through a selectively permeable membrane, when the water moves from the region of the high water concentration towards the region of the lower water concentration through a selectively permeable membrane. अब यहाँ पे selectively permeable membrane किसे कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को. ओके, इसके टू नेम्स हैं, जैसे हमने आपको समझाया था कि ये सिलेक्टिवली चीज़ों को अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है, इसलिए इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. और इसका सेकेंड नेम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन. ये होता है हमारा मूवमेंट ऑस्मोसिस के बारे में. लेट्स स्टडी अनदर टू टाइप ऑफ ऑस्मोसिस. फर्स्ट इज द एंडोऑस्मोसिस. It is the entry of water into a cell. When the cell gains the water, or there is the entry of the water into a cell, that is known as the endosmosis. Another that is the exosmosis. This is the exit of the water from a cell. Means a cell is having some water and it is coming out of that cell. That is known as the exosmosis. So these are the two types of osmosis occurs in the different types of the solutions. Let's study. There are the three types of the osmosis and different types of solutions. First is the hypotonic, another is the hyper, and the last is the iso. Okay, इनका मीनिंग क्या होता है? Hypo means high water concentration. Isotonic means same water concentration. Hyper means lower water concentration. ओके, लेट्स स्टडी इट इन डिटेल्स. हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर मीडियम जो सराउंड कर रहा हो सेल को, उसके अंदर ज़्यादा वाटर हो और सेल के अंदर कम वाटर हो, सो जो सेल है वो गेन कर लेगा वाटर. ओके, उसके आसपास जो पानी है वो ज़्यादा है, सेल के अंदर पानी कम है, सो क्या करेगा सेल, वो गेन कर लेगा वाटर एंडोस्मोसिस से, यानी कि एंट्री कर लेगा वो वाटर की सेल के अंदर. ओके, और जो सेल है वो मोटा हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा. ठीक है, इस तरीके के डिल्यूट सोल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन. क्लियर दिस पॉइंट? अनदर दैट इज द आइसोटोनिक सोल्यूशन. अब आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, मींस वेयर द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ द सेम वाटर कंसंट्रेशन, यानी कि बाहर भी सेम वाटर है और अंदर भी सेम वाटर है सेल के अंदर. सो वहाँ पे मूवमेंट कोई नहीं होगा मॉलिक्यूल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और इस तरीके के सोल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन. क्लियर? दिस इज द डेफिनेशन. सो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन भी मैंने आपको दे दी है. अनदर दैट इज द हाइपरटोनिक. अब हाइपरटोनिक में मैंने आपको बोला था लेस. ओके,
अगर जो मीडियम हो सेल का उसके अंदर कम पानी हो और सेल के अंदर ज़्यादा पानी हो, सो जो सेल है वो लूज़ कर देगा अपना वाटर एक्सॉस्मोसिस से और वो श्रिंक हो जाए, यानी कि बहुत पतला हो जाएगा, निचोड़ बसा हो जाएगा। ओके, जब आप कॉटन को पानी के अंदर डालो तो उसके अंदर बहुत सारा पानी आ जाता है, राइट, बट आप उसे निकालें और मतलब निचोड़ें तो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल श्रिंक हो जाएगी। ओके, सो ये एग्जाम्पल है हाइपरटोनिक सोल्यूशन का। इस तरीके के कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। लेट्स सी अनदर, दैट इज़ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज़ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट? ये एक ऐसा तरीके का ट्रांसपोर्ट है जो रिक्वायर करता है एनर्जी एटीपी की फॉर्म में। इसमें जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का अपोजिट डायरेक्शन में होता है, फ्रॉम द रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। यानी कि यहाँ पे मूवमेंट्स हमने पढ़ा था डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में, उनमें मूवमेंट्स होता है हायर से लोअर कंसंट्रेशन में, बट यहाँ पे अपोजिट होगा। इसे एनर्जी रिक्वायर होती है एटीपी की फॉर्म में। ये करेंसी है सेल्स की सेल्स की एनर्जी की फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे करेंसी क्या चलती है, हमारी रुपया चलता है, राइट। बट यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बात करें, सेल्स की बात करें हम, तो यहाँ पे इनकी करेंसी क्या है, एटीपी। ओके, ये मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का जिसके अंदर इसे एनर्जी चाहिए होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, कि इसमें मूवमेंट होता है अपोजिट डायरेक्शन में, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में। दिस इज नोन एज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अनदर दैट इज द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और द डिफ्यूजन। ये एक तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें जो वाटर, जिसमें मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, वो ओकर होता है ग्रेडियंट, कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट डायरेक्शन में। ओके, स्पेशल प्रोटीन्स के ज़रिए जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें उस तरीके के मूवमेंट्स का मॉलिक्यूल्स होता है जहाँ पे ज़्यादातर कंसंट्रेट हो रहा हो, यानी कि ज़्यादा पानी हो, ज़्यादा कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट्स हों। ये हेल्प लेता है प्रोटीन्स की, कुछ स्पेशल प्रोटीन्स की मूवमेंट के लिए, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। अनदर दैट इज द एंडोसाइटोसिस और द एक्सोसाइटोसिस। अगर हम बात करें एंडोसाइटोसिस की, ये प्रोसेस है इंजेक्शन, यानी कि इसके अंदर जो मटेरियल एंटर करता है सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए, उसे बोलते हैं हम एंडोसाइटोसिस। अनदर दैट इज द एक्सोसाइटोसिस, इज द एग्जिट हो रहा है, ठीक है। ये प्रोसेस होता है जिसमें हम मटेरियल बाहर निकालते हैं सेल के अंदर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए, तो इसे हम बोलते हैं सेल वॉमिटिंग भी। ओके, नेक्स्ट इज आर सेल वॉल। नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज द सेल वॉल। ये रिजिड होती है, नॉन लिविंग, जिंदा नहीं होती है, ये फ्रीली परमिएबल, यानी कि इसके अंदर कुछ भी जा सकता है, आ सकता है, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है और ये सेक्रेटेड है सेल्स के, खुद सेल के ज़रिए ही ये सेक्रेटेड है, और ये प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, फंगल सेल और बैक्टीरियल सेल्स में। एनिमल सेल्स में ये प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए तो एनिमल सेल्स की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। दिस वॉज अबाउट द सेल वॉल। दिस स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल। इन प्लांट सेल्स इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये एक तरीके की सेलुलोज से बनी हुई है, ये बनी होती है सेल्यूलोज, पैक्टेंस, हेमीसेल्यूएस। ये कुछ तरीके की चीज़ें होती हैं जिनसे कोई स्ट्रक्चर बनता है बॉडी का। ओके, ये प्लांट सेल में इन चीज़ों से बनी होती है सेल वॉल। और बैक्टीरियल सेल की बात करें तो वहाँ पे ये बनी होती है पेप्टिडोग्लिकैन। ओके, फंगल सेल्स में बनी होती है चिटिन। ओके, द फंक्शन ऑफ द सेल बॉडी, लेट्स स्टडी दीज। ये एक प्रोवाइड कर देती है टर्जिटी सेल को, ये डिटरमाइन कराती है शेप सेल की, ये प्रोवाइड करती है एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ सेल को, ये प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन सेल को हार्मफुल सब्सटेंसेस से, यानी कि कुछ चीज़ें जो अफेक्ट करती हैं सेल को, उससे ये प्रोटेक्ट करती है सेल वॉल। क्लियर दिस पॉइंट? अनदर टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज द प्लाज्मोलाइसिस। अब प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूज वाटर थ्रू एक्सॉस्मोसिस। कोई लिविंग प्लांट सेल हो वो लूज कर दे वाटर को एक्सॉस्मोसिस के ज़रिए, तो वहाँ पे एक श्रिंकेज या फिर कंट्रैक्शन हो जाता है प्रोटोप्लाज्म का दूर सेल वॉल से, ठीक है। इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्लियर? अनदर थिंग दैट इज द न्यूक्लियस। इट्स अ वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये मेजर और बीच में लोकेट करने वाला स्पेरिकल सेलुलर कंपोनेंट होता है। इसे हम कंट्रोल रूम भी बोलते हैं सेल का। क्यों? केमिकली जो न्यूक्लियस है ये कंपोज है डीएनए, प्रोटीन्स,
और आरएनए से, ठीक है। ये तरीके की कुछ डीएनए, आपको पता है ब्लड को बोलते हैं हम डीएनए, आरएनए अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये तरीके की कुछ प्रोटीन्स और कुछ चीज़ें हैं जिससे न्यूक्लियस बनता है। ओके, अब हम बात करें स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का। सो ये जो ये टाइपिकली कंसिस्ट करता है 4 तरीके के में, ठीक है। 4 तरीक़ों में ये टाइपिकली कंसिस्टेड है। फर्स्ट इज ए न्यूक्लियर एनवलप। अब न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है वो बाउंडेड होता है 2 तरीके की मेम्ब्रेन से, जो फॉर्म करती है न्यूक्लियर एनवलप को। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी होती है इनर मेम्ब्रेन। ये सेपरेट करता है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से, ठीक है। साइटोप्लाज्म को दूर रखता है और न्यूक्लियस को इतना दूर रखता है। न्यूक्लियस जैसे ये बॉडी है कोई, इसके बीच में है, यहाँ साइटोप्लाज्म है। सो ये यहाँ पे कुछ तरीके के एनवलप्स आ जाते हैं, ठीक है, जिससे ये सेपरेट कर देता है न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को। अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवलप है, इसके अंदर कुछ तरीके की पोर्स भी होती हैं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी जगह भी होती है, जिन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। अनदर इज दी न्यूक्लियोप्लाज्म। ये तरीके का एक ग्राउंड लिक्विड होता है जो न्यूक्लियर एनवलप के अंदर प्रेजेंट होता है। एक ग्राउंड तरीके का लिक्विड जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अनदर विच वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में और ये बाउंडेड नहीं होता है किसी भी मेम्ब्रेन से। ये रिच होता है प्रोटीन में और आरएनए में। ये एक साइट है राइबोसोम्स की। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं? ओके, इन्हें हम फैक्ट्री भी बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ सेल्स बोलते हैं राइबोसोम्स। इनके बारे में आप और डीपली आगे पढ़ने जा रहे हैं। ओके, अनदर दैट इज द न्यूक्लियर मटेरियल और द क्रोमैटिक मटेरियल। अब जानते हैं न्यूक्लियर मटेरियल और द क्रोमैटिक मटेरियल के बारे में हम डिटेल से। ये थिन होता है, थ्रेड लाइक मास होता है इसके अंदर, जो क्रोमोसोमल मटेरियल मास होता है क्रोमोसोमल मटेरियल का, और ये कंपोज होता है जेनेटिक से, जेनेटिक चीज़ों से, सब्सटेंसेस जैसे कि डीएनए एंड प्रोटीन्स। द क्रोमैटिक मटेरियल इज कंटेंस इनटू क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की उस जब सेल डिवीजन टेक प्लेस करता है, प्लेस ले लेता है सेल डिवीजन, जो क्रोमैटिक मटेरियल होता है वो कंटेंस करता है क्रोमोसोम्स में। अब ये क्रोमोसोम्स क्या हैं वो पढ़ लेते हैं। क्रोमोसोम्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? आपने बुना हुआ स्वेटर तो देखा होगा, उसमें थ्रेड्स ही होते हैं। ओके, स्पाइडर की मकड़ी का जाला देखा होगा, उसमें भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, समझना है तो कभी देखिएगा। सो जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। ये बना होता है डीएनए और प्रोटीन से, और ये हमें जब ही दिखता है जब हम सेल डिवीजन टेक प्लेस करते हैं, यानी कि जब सेल डिवीजन होता है जब ही हमें क्रोमोसोम दिखता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में। सो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। दिस फुल लाइनिंग्स आर नोन एज द क्रोमोसोम। ये बीच में जो ये चीज़ प्रेजेंट है इसको बोलते हैं हम सेंट्रोमर, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसमें, दिस इज नोन एज द सिस्टर क्रोमैटिक्स, सिस्टर क्रोमैटिक्स। Clear? Now another thing which we are going to study is the function of the nucleus.